Good evening, everyone. Welcome to my channel, Medical Lectures with Khushbu Ma'am. Today, we are going to discuss a very small topic of BSc Nursing, fourth year program, that is Introduction to Midwifery. Actually, I received a mail from a student who told, Ma'am, please start the syllabus of BSc Nursing, fourth year obstetric and gynecology. So, here I am starting that according to the syllabus of INC. So, students, we are starting our first unit, Introduction to Midwifery, and you will get a question which comes in your mind first. Who were midwiferys? Everywhere we are learning like GNM, General Nursing Midwiferys, ANM, Auxiliary Nurses Midwife, and we are also registered nurse and midwife. We are practicing as a midwife, right? तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है एक्चुअली मिडवाइफ्स होते कौन है, मिडवाइफरी है क्या, right? So here in simple language we are going to study the midwives. Midwives क्या होते हैं? Actually they are health care professional like you only. They have completed their course. They have completed the ANM, GNM, BSc nursings. They are registered with the license. So they were a health care professionals who were providing care to the child-bearing women, like who were pregnant, who were planning to get pregnant, who were in the phase of giving labor, who were given the birth to the baby, like antenatal, intranatal, and postnatal period. So the women or the healthcare professional or the registered nurse, especially registered nurse, who were providing care to these women, pregnant women, at their antenatal, intranatal, postnatal period, along with the preconception. कंसेप्शन से पहले भी जो प्रोवाइड कर रही हैं केयर, दे वर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कॉल्ड एज मिडवाइफरी. ओके, इन सिंपल वर्ड मिडवाइफरी कौन है? दे वर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि केयर प्रोवाइड कर रहे हैं मदर्स को जो प्रेग्नेंट हैं या प्लान कर रही हैं प्रेग्नेंट के लिए, ठीक है, जो बर्थ या लेबर प्रोसेस में है इस समय, जो बेबी को डिलीवर करने जा रही हैं, ये पोस्ट नेटल मदर जो डिलीवर कर चुकी हैं, ओके, उनको केयर प्रोवाइड करते हैं मिडवाइफरीज, राइट? और हम अभी पढ़ने क्या जा रहे हैं? ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी. तो सिंपल सी बात है, fourth years BScs you have one subject, very important subject, that is obstetric and gynecology. So many of them were having lot of confusion कि obstetrics और gynecology में क्या difference होता है, right? obstetric and gynecology में क्या difference होता है? तो अगर हम सिंपल वर्ड में आपको बोलें, जनरल वर्ड में आपको डिफरेंस बता दूं मैं, ऑब्स्ट्रिक्स हमेशा प्रेग्नेंट वेमेन या उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स, प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डील करता है, ठीक है ना? और गायनेकोलॉजी हमेशा ये विमेन रिलेटेड डिसीजेस या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिसीजेस से डील करता है. मतलब सारे विमेन्स में होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे डील करने को हम गायनेकोलॉजी कहते हैं. अंडरस्टूड? सिंपल वर्ड. Obstetric is going to deal with the pregnancy and related factors. Obstetric is just like simple सा है, pregnancy और उसके related factors को deal करता है. And gynecology क्या deal करता है? सारे women से related, उनके reproductive tract से related problems को जो है deal करता है, ठीक है? So here you will see obstetric. It's a branch of medicine that deals with the care of women during pregnancy, childbirth, and vulnerable period following delivery. So obstetric pregnancy से deal कर रहा है, pregnancy से related factors को deal कर रहा है. That means कि pregnancy में और delivery में
और उसके बाद वाले पीरियड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं या जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, ये नॉर्मल जो केयर है वो सब डील करता है ऑब्स्ट्रिक. ओके, सो दिस इज ऑब्स्ट्रिक. अभी ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग क्या है? बिकॉज वी आर रीडिंग ऑब्स्ट्रिक इन गायनेकोलॉजी, राइट? It's a branch of medicine that deals with the care of women during pregnancy, childbirth, and vulnerable period following delivery. So, obstetric प्रेगनेंसी से डील कर रहा है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड फैक्टर्स को डील कर रहा है. दैट मीन्स कि प्रेगनेंसी में और डिलीवरी में और उसके बाद वाले पीरियड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं या जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, ये नॉर्मल जो केयर है वो सब डील करता है ऑब्स्ट्रिक. ओके, सो दिस इज ऑब्स्ट्रिक. अभी ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग क्या है? बिकॉज वी आर रीडिंग ऑब्स्ट्रिक इन गायनेकोलॉजी, राइट? इट्स अ स्पेशलिटी. एक स्पेशलिटी, एक फील्ड है, ठीक है? एक स्पेशलिटी है, एक फील्ड है नर्सिंग का जो डील किससे कर रहा है? प्रेगनेंसी से. ठीक है, समझ में आया? प्रेगनेंसी से डील कर रहा है या फिर जो डिलीवर करने वाली हैं उनसे डील कर रहा है या फिर जो डिलीवर कर चुकी हैं, अभी जल्दी में डिलीवर कर चुकी हैं उनसे डील कर रहा है या फिर रिलेटेड फैक्टर्स, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनसे डील कर रहा है. इट्स अ स्पेशलिटी ऑफ नर्सिंग दैट वर्क विद द पेशेंट हु आर अटेम्प्टिंग टू बिकम प्रेग्नेंट. जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उनसे डील करना, जो करेंटली प्रेग्नेंट हैं उनसे डील करना, और रिसेंटली डिलीवर कर चुकी हैं बेबी को उनसे डील करना. दिस इज कॉल्ड ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट. सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारा स्कोप क्या है मिडवाइफरी का, योर सेकेंड टॉपिक यू विल गेट इन योर फर्स्ट यूनिट इज स्कोप ऑफ मिडवाइफरी. स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब क्या होता है? अरे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा पढ़ाई का स्कोप क्या है, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किस किस फील्ड में हम काम कर सकते हैं, राइट? वैसे ही मिडवाइफरीज का स्कोप क्या है, वो कहाँ कहाँ पे अपना केयर प्रोवाइड कर सकती हैं. दैट इज ओनली द स्कोप, राइट? तो आपको मैंने ये बताया है कि अगर हम मिडवाइफ को लें तो उसके अंदर ऑब्स्ट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग दोनों आ जाती है. ओके, तो मिडवाइफ का एसेंशियल पार्ट ही है कि उनको रिप्रोडक्टिव रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. समझ में आ गया? रिप्रोडक्टिव रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. दैट मीन्स कि उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो है केयर प्रोवाइड करनी है. जो भी केयर होंगे, जो भी प्रोसीजर्स होंगे, जो भी डिसऑर्डर्स होंगे, वो सारी चीज़ें. तो अगर हम बात करें, midwife have essential role to play in preparing for and providing sexual and reproductive health services, scientifically based act and procedure which she used to provide and practice in midwifery and which relate to the mother and child in the pregnancy, labor and puerperium. Okay, I hope you know the puerperium. After delivery of the placenta, ऑब्जर्वेशन स्टेट होता है, उसके बाद परप्यूरियम पीरियड स्टार्ट होता है पोस्टनेटल मदर का अप्रॉक्स 6 वीक के लिए, विच इज नोन एज परप्यूरियम. ओके, तो यहाँ पे स्कोप की अगर हम बात करें, इट हैज अ वाइडर स्कोप. मिडवाइफ्स के लिए बहुत वाइडर स्कोप है. दे आर प्रोवाइडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज एंड सेक्सुअली रिलेटेड हेल्थ सर्विसेज. सो गायनेकोलॉजीज एक्चुअली क्या है, वो सारे विमेन से के रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज से रिलेट करता है. प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मदर और चाइल्ड से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, पोस्ट नेटल पीरियड से रिलेटेड, एवरीथिंग एवरीवेयर दे हैव अ स्कोप ओनली. आप जब जाएंगे क्लिनिकल एरिया में तो आप क्या करेंगे? क्लिनिकल एरिया में लेबर वार्ड में आप पोस्टेड हुए क्या करेंगे? whosoever इज कमिंग, whosoever, कोई भी फीमेल आपके पास आती है गायनिक की या फिर ऑब्स्ट्रिक की, you have to provide the care, right? So you have a wider scope. Okay, so next one, क्या क्या स्कोप हैं? आप अभी पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारे स्कोप क्या क्या है, हमारे मिडवाइफरी का स्कोप क्या है. पहला स्कोप है the diagnosis of health need of mother and to provide attainment of optimum physical and mental health for mother and child
by the prescription, provision, and execution of midwifery regimen where necessary. Whatever you have reading, जो भी चीज़ तुम यहाँ पढ़ रहे हो, everything you have to apply accurately during your clinical practices. Understood? सारी चीज़ों को ही आपको एक्यूरेटली अप्लाई करना है अपने प्रैक्टिस के टाइम पे. वेन एवर यू आर गेटिंग लाइक रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस मिलने के बाद आपको सारी चीज़ों को एक्यूरेटली अप्रोप्रिएट जगह पे अप्लाई करना है, यूजिंग योर एवरी स्किल. So what you have to do when a pregnant mother or any else woman or a girl is coming to you, you have to diagnose their health. Mother ho ya koi bhi ho, you have to diagnose their health using everything, every skill, and knowing their health condition and knowing their physical and mental health condition. ठीक है, सारी चीज़ें आप सारे अपनी स्किल यूज़ करके आपको ये अप्लाई करके उनके हेल्थ कंडीशन को, उनके हेल्थ स्टेटस को फाइंड आउट करना है. और उसके साथ साथ यू हैव टू यूज़ योर स्किल इन प्रोवाइडिंग केयर टू देम, अप्रोप्रिएट केयर जो उनको नीड है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ डिसीज. आपके पास आते हैं पेशेंट, आप क्या करते हैं? यू आर प्रोवाइडिंग केयर, यू आर जस्ट आइडेंटिफाइंग क्या प्रॉब्लम है, चीफ कंप्लेंट्स आप सुनते हैं क्या प्रॉब्लम है, राइट? एंड देन यू आर प्रोवाइडिंग सर्टेन केयर्स. यू आर जस्ट इन्फॉर्मिंग योर कंसल्टेंट, यू आर इन्फॉर्मिंग योर डॉक्टर्स, और उसके बाद वो जो भी चीज़ें आपको बताते हैं, यू आर जस्ट यूजिंग दोज स्किल्स एंड योर आइडियाज, दैट प्रिस्क्रिप्शन इन प्रोवाइडिंग केयर, है ना? तो ये है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑफ डिसीज. Any kind of disease in women and pregnant women, both. Any kind of diseases related to pregnancy, labor, and delivery, and the promotion of health and family planning. Everything you have to deal. Not only a single thing, pregnancy और सारा gynec का ही और pregnancy, not only those things. Huh? You have to provide care along with सर्टेन फैक्टर्स और क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं उनकी हेल्थ को ख़राब करने के लिए. इफ़ अ मल्टी ग्रेविड वुमेन इज कमिंग, यू विल गेट टू नो कि उनका हेल्थ स्टेटस खराब है, राइट? उनका हेल्थ स्टेटस सही नहीं है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स जो इस वुमेन को या इस पेशेंट को प्रॉब्लम कर रहा है, पोटेंशियल प्रॉब्लम कर सकता है, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है. So identifying those problems, potential and actual problems, you have to provide the care. You have to help them in preventing the disease. You have to make them to use certain family planning methods. Okay, like means you have to promote their health in certain kinds of phases. In women, in girls, in pregnancy, in puerperium, in intranatal period, every field. Okay, so you have a broader scope. Understood? Teaching and counseling you have to give. The next one is teaching and counseling. Everything you know, like antenatal health advices we are providing, antenatal diet regarding health, antenatal exercises. Okay, intranatal, what are the exercises you have to go for? Okay, then postnatal exercises, postnatal diet, postnatal visit. Everything. So teaching and counseling, preconception also. Genetic है, अभी genetic कितना ज़्यादा broader scope पे है. So that is also your area. You have to identify if she is planning to get pregnant. आपको पहले से identify करना है. What are the potential problems she can get? कौन सी congenital जो है problems उनके घर में है, ठीक है? बहुत सारे जो है हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से बहुत सारी डिसीजेज होती है. विमेन्स आर कैरियर, मेंस आर कैरियर. ओके, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अनहेल्दी प्रेगनेंसी हो जाए या बच्चा इफेक्ट हो. सो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग ऑल्सो यू हैव टू प्रोवाइड, है ना? Then how you can prevent the disease, teaching and counseling you have to give, and monitoring the health status of the women. Nutritional status, whether she is getting enough amount of food, whether she is taking enough amount of calorie, okay, whether she is going to have a healthy lifestyle. Okay, so these all things you have to monitor the health status of the women. So how you can go for these things?
ये सारी चीज़ें जब हम मॉनिटर कैसे कर सकते हैं हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर को, उनके वाइटल साइंस चेक करके, ठीक है, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करके, उनका हाइट वेट चेक करके, उनकी एज जान करके, जो विजिट हो रहा है एवरीथिंग प्रेगनेंसी में, सारे जो विजिट हो रहे हैं उन विजिट्स में आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे? यू आर आइडेंटिफाइंग, यू आर डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम्स. ओके, सो दोज प्रॉब्लम्स which you will get has to be identified priorly और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना. That means only you are preventing the disease. So monitoring the health status of women like progress of pregnancy, प्रेगनेंसी कितना अच्छे से जा रहा है, लेबर कितना अच्छे से, कहीं डिस्टोशिया तो नहीं है, कहीं बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पेल्विस में कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट. देन मदर डजंट हैव एनी काइंड ऑफ डिसीज, उसको पहले से HIV तो नहीं है ना. देन परप्यूरियम फेज इज ऑल्सो वेदर इट इज गोइंग नॉर्मल और नॉट. ओके, इन्वोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट, एवरीथिंग. Then vitals of the mother and child also you will get to know. Through that also you will get to know कि हाँ mother healthy है, baby healthy है, right? And working with the female, how you have to work with the female, reduce her stress anxiety. You have to reduce her stress and anxiety related to pregnancy. If she is having disease priorly, कोई disease उसे पहले से है, yeah, if she is a primary mother, she's have a lot of questions. You have to clarify her doubts. Okay, so how you can clarify? You have to give them a counseling. Okay, you have to counsel them. You have to tell each and everything regarding the pregnancy, medication, and whatever the treatment she is going through. Okay, then how you can prevent the complication of pregnancy? Maybe you will get to know she is a primary mother. Okay, she can get a vaginal laceration, right? So at the time of crowning, what do you have to do? Planned episiotomy you will going for. Okay ना? So अगर क्राउनिंग मिलता है, क्राउनिंग इज अ स्टेज जब बेबी बिल्कुल डिलीवर होने वाला होता है और जो वेजाइना होता है वो बिल्कुल थिन हो चुका होता है, वल्वार एरिया बहुत थिन हो चुका होता है. सो इफ यू आर नॉट प्लानिंग दैट टाइम फॉर एपिसियोटमी, वेजिनल लेसरेशन हो सकता है, वेजाइनल टीयर हो सकता है, ठीक है. तो हम इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं. कैसे? बाय आवर ओन स्किल, बाय आवर नॉलेज, ठीक है. तो वो नॉलेज हम पढ़ेंगे जब, तब हमें आएगा. आपका प्रिवेंशन में स्कोप है, ठीक है. एपिसियोटमी करने में स्कोप है, सूचर करना है, एपिसियोटमी को सूचरिंग भी करना है, ठीक. और उससे पहले लोकल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर भी करना है, दैट इज ऑल्सो योर. मेडिकेशन प्रोवाइड करना है, मदर को हाइजीन से रिलेटेड, जो फिजिकल कंफर्ट से रिलेटेड, एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी को रिड्यूस करना, रीएश्योरेंस करना मदर को, ठीक है. एवरीथिंग यू हैव टू प्रोवाइड. दिस इज योर पार्ट, दिस इज योर स्कोप. Then how you can help her in preventing the complication? You will help, like tell them to do exercise, antenatal exercise, intranatal exercise, postnatal exercise. They have to take adequate rest and sleep. ओके, स्पेशली इन प्राइमरी मदर. आप क्या देखेंगे, उनका ना चलने का ढंग थोड़ा चेंज हो जाता है. देयर पोस्चर विल बी लाइक बहुत ज़्यादा एकदम टेढ़ा मेढ़ा होता है. दैट ऑल्सो यू हैव टू मेक देम टू लर्न टू वॉक स्ट्रेट. हाउ यू विल हेल्प? बाय काउंसलिंग देम, राइट. तो ये सब चीज़ करके आप उनके कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं. बॉडी मैकेनिक्स बतानी है उनको, चलने का तरीका बताना है, ठीक है, सारी चीज़ें. Then if it is necessary, you have to provide the care for emergency also. Like if she is being dehydrated, if she got the postpartum hemorrhage, if the baby is having any complication, if the mother is having any complication, everywhere, every time, like you have to provide care. क्या care provide करना है? जो भी care उनको need है उस time पे. If she need the oxygen, you have to provide. If she need electrolytes, you have to provide. राइट, ठीक. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहीं मदर को कोई भी वुंड तो नहीं है. इन केस शी इज हैविंग एनी वुंड, यू हैव टू ड्रेस इट अप, राइट.
You have to dress it up. You have to assess whether it is going for the healing or not, whether it is facilitating with the healing or not. Okay. Lot of physiological changes she is going through. Okay. During her pregnancy stages. So she's having lot of like doubt, shame, and in especially in primary mother. ठीक है, तो बहुत सारा उनको डाउट रहता है, बहुत ज़्यादा उनको शेम रहता है, बहुत ज़्यादा उनको डर रहता है उनकी स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर के, ठीक है। और स्पेशली जब उनका वेजाइनल जो है एपिसियोटमी हम करते हैं, देन शी इज़ हैविंग लॉट ऑफ एंजाइटी एंड डाउट्स। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक हर रीएश्योर, यू हैव टू रीएश्योर हर हील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम नहीं आए, वहाँ पे कहीं एब्सेस फॉर्मेशन ना हो, उसकी हीलिंग एक प्रोसेस में, अच्छी प्रोसेस में, पॉजिटिव प्रोसेस में हो, राइट। प्रोटेक्शन ऑफ स्किन, मेंटेनेंस ऑफ सेंसरी ऑर्गन, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर एंड चाइल्ड, every field you have to assess what she need, where she is lacking. You have to counsel, you have to provide certain knowledge, right? Then what you have to do? The next point is promotion of breastfeeding in a holistic perspective. In a holistic perspective, right? Holistic means overall. So breastfeeding, that we have to provide like exclusive breastfeeding for 6 months, और इस टाइम पे हमें कुछ भी नहीं देना होता है बच्चे को। तो यहाँ पे आपको मदर को सारी चीज़ें समझानी है, उनके फैमिली मेम्बर्स को सारी चीज़ें समझानी है आपको, दैट ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है मदर के लिए और बेबी के लिए। सो कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, जब हम उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे फैमिली में, फैमिली मेम्बर्स में, मदर में, ठीक है, कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। So that is how we have to promote the breastfeeding. This is all our part. If she is there in a postnatal period और या फिर ऑब्जर्वेशन स्टेट में वो हॉस्पिटलाइज्ड है मदर, तो हमें उसे यहाँ पे एजुकेट करना है। It's all our part. Then establishing and maintaining the healthy environment with which physical and mental health of mother and child get promoted. ऐसा environment provide करना है हमें, ऐसा environment establish करना है. We should not ruin the mother's mental peace. Mental status उसका normal रहे, मेंटल पीस उसका ना जाए। हॉस्पिटल में आने के बाद क्या होता है क्योंकि एक नॉर्मल महिला है, बिकॉज प्रेगनेंसी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, पेशेंट नहीं है, अनटिल अनलेस उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलता। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रोसेस है, इट्स अ नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस। तो वहाँ पे हम मदर को जो है कभी पेशेंट कह करके नहीं बुलाते हैं कि हॉस्पिटल वो आती है, देन वो वहाँ एडमिट होती है, शी विल फील लाइक कि मेरे साथ क्या हो जाएगा है, शी इज हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, शी इज हैविंग लॉट ऑफ डाउट। सो फॉर दैट आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ताकि वो बच्चे के लिए भी और मदर के लिए उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बैलेंस करके चले, ना कि उसको रूइन करे, ना कि उसे डिस्ट्रॉय करे, राइट। दिस इज ऑल्सो द स्कोप ऑफ मिडवाइफरी। देन assisting and preparing in operative, diagnostic and therapeutic act for a mother and child. So every procedure related to the obstetric and gynecology you have to assist, you have to prepare. और कोई भी डायग्नोस्टिक हो, थेराप्यूटिक प्रोसीजर हो, थेराप्यूटिक इन द सेंस जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, देन डायग्नोस्टिक क्या है, कोई डायग्नोसिस से रिलेटेड है, ओके। सो सब चीज़ों के लिए असिस्ट करना है किसको, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट को, और प्रिपेयर किसको करना है, मदर को प्रिपेयर करना है। सो यू शुड नो दिस इज योर पार्ट, दिस इज द स्कोप ऑफ मिडवाइफरी। सो आई होप you have understood the scope of midwifery. The simple thing you should know is we have to provide sexual and reproductive health related services. So sexually health related services you will easily get an idea, like gynecological related services, menstrual related services, है ना, बहुत सारे सर्विसेज है जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं विमेन की, उनसे रिलेटेड सर्विसेज। सो वी हैव ऑलरेडी रेड दिस वन, द सिंपल थिंग, लाइक
हमें किस किस जगह पे प्रोवाइड करना है केयर। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो हमें स्टार्टिंग से लेके जब से वो हॉस्पिटल में आती है, ईच एंड एवरी स्टेप पे हमें उसे हेल्प करना है, और वही हेल्प हमारा एक तरीके से स्कोप है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी नर्सिंग। बहुत बोरिंग लगता है सब बच्चों को, आई नो, और स्पेशली कभी एग्जाम में नहीं आता है बच्चों, बीएससीज के लिए भी है और इवन एमएससीज के लिए भी कभी एग्जाम में नहीं आता है। बट द सिंपल सिंपल थिंग यू शुड नो रिगार्डिंग द हिस्ट्री, कैसे नर्सिंग में कैसे मिडवाइफ स्टार्ट हुआ और उन्होंने मिडवाइफ को क्या समझा, इसलिए हम ये पढ़ते हैं। ओके, सो एक्चुअली मिडवाइफ को पहले डेफिनेशन या फिर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से रिवील किया गया कि मिडवाइफ एक्चुअली होती क्या है। सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ, WHO एंड द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रिक ने एक स्टेटमेंट दिया कि एक्चुअली मिडवाइफ क्या है। तो हमने आगे मिडवाइफ की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, दोज लाइक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं दोज वर प्रोवाइडिंग केयर टू दी प्री प्रेग्नेंट मदर और एट द टाइम ऑफ लेबर और एट द पोस्ट नेटल पीरियड ना। तो ये सारी चीज़ें हमने मिडवाइफ की पढ़ी हैं। बट हमने सिंपल सा बोला है, मिडवाइफ इज अ पर्सन इज हैविंग बीन रेगुलरली एडमिटेड टू द मिडवाइफरी एजुकेशनल प्रोग्राम दैट इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड इन द कंट्री in which it is located, where she is like taking education, has successfully completed the prescribed course of study in the midwifery. She has completed the course also and has acquired the requisite qualification. पर्टिकुलरली वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसकी वजह से वो रजिस्टर्ड हो सके एंड और लीगली लाइसेंस्ड हो सके मिडवाइफरी को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हैं, रेगुलरली आप एजुकेशनल प्रोग्राम ले रहे हैं, आपकी कंट्री में है, वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ठीक, और साथ ही साथ आप जो है आईएनसी के अंडर में हैं एंड यू विल कंप्लीट द कोर्स आफ्टर सम टाइम, लाइक आफ्टर 6 और 7 मंथ आप कंप्लीट कर लेंगे अपने कोर्स को। देन आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके थ्रू आप खुद को लाइसेंस कर लेंगे, पर्टिकुलरली अपने स्टेट मेडिकल फैकल्टी से, और फिर आप मिडवाइफरी को प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया मिडवाइफ के लिए, पर हम अगर हिस्ट्री देखें तो बहुत पहले जो है बहुत सारे फिजिशियंस थे, जैसे कि यहाँ पे सिंपल से बोला गया है, फिजिशियन सोरानस ऑफ एफिसस described certain characteristic desire to be a good midwife. She should have a beautiful personality, long like fingers and short nails and good memory, good looking, you know. Then she should respect her profession and she should love her work, है ना। तो ये सारी चीज़ें, she should not be handicapped ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। and she must be having a sympathetic disposition and she keeps her hands soft for a comfort of both. So how you will see other, like how maternity nursing or maternity services were increasing in India. Various programs were launched for the maternity services such as Family Welfare Program, Reproductive and Child Health, RCH, National Population Policies and etc. And they were providing the major intervention which is basically done by midwife only. अब CSC PSC पे दिन भर डॉक्टर नहीं रहते, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे दिन भर डॉक्टर नहीं रहते, सो हु वर प्रोवाइडिंग दोज केयर और सर्विसेज? midwife only. So essential obstetric care, emergency obstetric care, 24-hour delivery services at PSC, CSC, referral transport, safe abortion services, and especially a medical termination of pregnancy act 1971, which are all the services of maternity in India, और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट मिडवाइफरी प्रैक्टिसनर जो है इसको रन कर रहे हैं। So this is all about the introduction to midwifery. So today we have discussed a very important topic of first unit, that is introduction to midwife. I hope you have understood that, which is like who were midwife. Many students were having a lot of doubt like midwife कौन है, हर जगह हम midwife सुनते हैं, तो the simple definition you all got. And then obstetric and obstetrical nursing, सिंपल obstetric and gynecology में डिफरेंस मैंने आपको क्लियर किया है। ओके, देन
स्कोप क्या है, तो लाइक अगर अभी नहीं भी याद आ रहा है तो आप क्या करेंगे, प्री कंसेप्शन से लेकर के उसकी डिलीवरी के बाद तक की केयर, और गायनेकोलॉजी में आप जो भी केयर है जब भी आ रही है तो वो उस केयर के हर एक स्टेप पे जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट ऑल विल कम अंडर द स्कोप. Then if you are just going for the statement of midwife in nursing, which was given by WHO, so it's a midwife is a person who is having regularly admitted to a midwifery educational program. She has undergoing educational program, a prescribed course, जैसे कि आपका 4 year का course है, you are going that course, और आपका जो syllabus है, you are learning that syllabus. Okay, and that course should be recognized from particular university, and it should particularly that university should be recognized in that country and under the INC. Okay, और आप अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ स्टडी के टाइम पे, एंड देन यू आर जस्ट टेकिंग दैट क्वालिफिकेशन, विद दैट यू आर बीन रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट मेडिकल फैकल्टी, और आप लाइसेंस हो जाते हैं मिडवाइफ को प्रैक्टिस करने के लिए. सो दिस इज द सिंपल टॉपिक. So student, if you have any doubt, queries or suggestion, mail me on the given mail ID in the description box. Or else आप कोई टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं तो I am there to take it. Thank you student. Meet you in the next video. God bless you.